Okay, good morning, everyone. Welcome back to another class of body fluids and circulation. So, we are doing a topic called as blood vessels. So, when you talk about the blood vessel system, okay, you talk about the blood vessel system in the circulatory system, we start up with the largest artery of your body, that is aorta, right? Aorta, which arises from your left ventricle, which carries oxygenated blood to different parts of the body, right? So aorta is the largest blood vessel which branches out. These ऐसे जो मैंने बनाया, they are intending to show you branching. Aorta branches out to form arteries. Arteries then branches out to form arterioles. Arteries के छोटे भाई है arterioles. Arterioles will branch out to form meta arterioles. Meta का मतलब क्या है बेटा? Meta refers to change. Correct. So meta arterioles, where your arteries का स्पेशलिटी क्या है, आर्टरियोल्स का स्पेशलिटी क्या है कि उसमें स्मूथ मसल्स होंगे, राइट? मेटा आर्टरियोल्स इज दैट पर्टिकुलर जंक्शनल पार्ट वेयर योर आर्टरीज जिसमें थ्री लेयर्स ऑफ मसल्स थे वो अब सिंगल लेयर में हो जाएंगे. 3 लेयर्स ऑफ मसल्स नहीं, माय मिस्टेक, 3 लेयर्स ऑफ वॉल्स थे, वो अब सिंगल लेयर के होने वाले हैं. एंड दीज मेटा आर्टरियोल्स विल लेटर ब्रांच आउट टू फॉर्म अ सिंगल वॉल्ड ब्लड वेसल कॉल्ड एज कैपिलरीज. Is that right? So all of here is supply of in this particular case there is supply of oxygenated blood. अब ये कैपिलरीज जाएंगे टिश्यूज को. अब टिश्यूज को, व्हेन आई टोल्ड यू टिश्यूज को ब्लड सप्लाई मिलेगा, टिश्यूज विल गेट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड अल्टीमेटली दीज टिश्यूज को ऑक्सीजन मिलने के बाद द सेम ब्लड विल बिकम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो अल्टीमेटली वी विल से दैट द कैपिलरीज विल लेटर यूनाइट. The capillaries will unite to form venules जो टिश्यूज से बाहर निकलेंगे. Venules will unite to form veins. ठीक है, veins will later unite to form vena cava. Vena cava will get into the right atrium. Right atrium से they will get into the right ventricle. Right ventricle से they will get into the pulmonary artery. Pulmonary artery से they will get into the lungs for oxygenation. Lungs से वो वापस हो जाएंगे oxygenated. ठीक है, लंग्स से वो वापस आएंगे थ्रू दी पल्मोनरी वेन्स. पल्मोनरी वेन से वो जाएंगे इनटू दी लेफ्ट एट्रिया. लेफ्ट एट्रिया से वो जाएंगे इनटू दी लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो निकलेगा वो है एओर्टा. ओके, so this is the entire blood vessel circulatory system. So let's quickly have a look into the circulatory system as I want to show you. Just have a look at this circulatory system. What you can see is a male cardiovascular system.
मेल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये जो ब्लू में इन लोग ने जो डिनोट किया है वो है आपके वेन्स, और जो रेड में डिनोट किया है वो है आपके ब्लड वेसल्स, दैट इज आर्टरीज. नाउ एज यू कैन सी दी हार्ट हियर. हार्ट से जो निकल रहा है बेटा, ये देखो यहाँ पे, ये आपका एओर्टा है. ठीक है, एओर्टा को ही थोड़ा सा पीछे घुमाते हैं बेटा. जो हार्ट के पास तक है ये आपका एओर्टा है. एओर्टा से जो थिन ब्रांचेस निकल रहे हैं, कैन यू सी दिस, दिस इज एन आर्टरी, दिस इज द थोरैसिक एओर्टा, दिस इज द एब्डोमिनल एओर्टा. अब आप देख रहे हो कि थोरैसिक एओर्टा से बहुत सारे ब्रांचेस निकल रहे हैं. ये एक ब्लड वेसल निकला है. ठीक है, सिमिलरली ये एक ब्लड वेसल निकला है. वी विल हैव टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस ब्लड वेसल सिस्टम, डोंट वरी अबाउट द नेम्स फॉर नाउ, बट आपको यही याद करना है कि ये ब्लड वेसल्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहे हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाने वाले. ये देखो, ये बड़ा सा ब्लड वेसल है, इंफीरियर वीना कावा, जो इंफीरियर वीना कावा जाकर हार्ट को वापस ज्वाइन करता है. ओके, सो in totality what we have to discuss in this particular class is just the basic differences between the blood vessel system. ठीक है, now let's go back to your major blood vessel system. Okay, and I told you that arteries, veins, ये दोनों ऐसे blood vessels है जिसको 3 walls of covering है. ठीक है, so when you talk about the internal structure, what you can see on the screen is a pre-made diagram of a cross section, that is the transverse section of a artery. So let's talk about the internal walls of the artery. So walls of the artery, अब बेटा walls है तो हम walls को generally जो layer है, outer covering है, उसको bio में हम denote करते हैं. The first valve is referred to as the tunica externa. Here tunica refers to the covering. Tunica refers to covering. So tunica externa common sense बोलता है कि external covering है. Tunica externa is also called as tunica adventitia. Tunica adventitia. अब ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो है बेटा, ट्यूनिका एडवेंटिशिया नाम बता रहा है एडवेंटिशियस. एडवेंटिशियस का मतलब फाइब्रस है ना, एडवेंटिशियस रूट्स, फाइब्रस रूट्स आपने पढ़ा होगा. तो ट्यूनिका एडवेंटिशिया, इट इज अ फाइब्रस लेयर, अब कौन सा फाइब्रस होगा बेटा? इट इज अ फाइब्रस लेयर. कौन से फाइबर्स होंगे? फाइबर्स जो होंगे वो है कोलेजन के. इट्स अ टफ कवरिंग दो, राइट. सो इसका काम क्या है? टफ प्रोटेक्शन है ना, प्रिवेंटिंग द कोलैप्स ऑफ द ब्लड वेसल्स. द सेकेंड लेयर इज ट्यूनिका मीडिया. जो बीच का लेयर है उसको बोलेंगे ट्यूनिका मीडिया. एंड ट्यूनिका मीडिया इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल सेल्स. स्मूथ मसल लेयर है, इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल सेल्स. ओके, थर्ड लेयर जो है उसको बोलेंगे बेटा ट्यूनिका इंटरना, और ऑल्सो रेफर टू एज ट्यूनिका इंटीमा. ट्यूनिका इंटीमा जो है, ट्यूनिका इंटीमा इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द एंडोथीलियम. इट इज द एंडोथीलियम. तो किससे बना होगा एंडोथीलियम? चलो बताओ, एंडोथीलियम किससे बना है? इट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम. इसी को कौन से टाइप का एपिथीलियम बोलेंगे हम बेटा? टेसेलेटेड एपिथीलियम. समझ गए बेटा? ठीक है. सो दीज आर द 3 वॉल्स ऑफ द
these are the three walls of the blood vessels. Now let's try and label these particular walls here. ठीक है, so ये जो बाहर का लेयर हमने बनाया है ये वाला, इसको हम बोलेंगे ट्यूनिका एडवेंटिशिया. ये बीच वाला जो लेयर है इसको हम बोलेंगे ट्यूनिका मीडिया. और ये अंदर वाला जो लेयर है ब्लैक में जो हमने बताया है बेटा, दैट इज योर ट्यूनिका इंटीमा या ट्यूनिका एक्सटर्ना. ठीक है, तो चलो ये तो मेजर पार्ट हो गया लेबल. और ये जो बीच का जो स्पेस है जहाँ से ब्लड पास हो रहा है इसको हम बोलेंगे ल्यूमेन ऑफ द ब्लड वेसल. सो ल्यूमेन इज द एरिया वेयर द ब्लड एब्सोल्युटली पासेस थ्रू, राइट. अब तीन लेयर है, तीनों लेयर के बीच में देयर इज अ इलास्टिक लैमिना. ठीक है, ये इलास्टिक लैमिना का प्रॉपर्टी क्या है? इट इज एसोसिएटेड विद प्रॉपर क्या बोलते हैं, प्रोवाइडिंग एन इलास्टिसिटी टू दी ब्लड वेसल बिकॉज योर आर्टरीज आर कॉन्स्टेंटली एक्सपीरियंसिंग अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रेशर, right? Blood flows through these blood vessels with a certain amount of pressure. So arteries जो है एक pressure experience करती है, उस प्रेशर को विथस्टैंड करने के लिए देयर इज अ लेयर ऑफ इलास्टिक टिश्यू. इट इज मेड अप ऑफ येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, है ना. सो दिस बिटवीन ट्यूनिका एडवेंटिशिया एंड ट्यूनिका मीडिया जो एक लेयर है उसको मैं बोलूँगा एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना. वैसे ही बेटा ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा के बीच में होगा इंटरनल इलास्टिक लैमिना. इंटरनल इलास्टिक लैमिना. वेरी क्लियरली अंडरस्टूड बेटा. ठीक है, नाउ व्हाट कैरेक्टरिस्टिकली यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम इज दी ट्यूनिका एडवेंटिशिया इज़ वेरी कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, पतला है. ठीक है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो है इट इज़ नॉट वेल डिवेलप्ड. बट ट्यूनिका मीडिया जो दिख रहा है आपको, ट्यूनिका मीडिया इज़ वेल डिवेलप्ड, इट इज़ कंपेरेटिवली वेरी स्ट्रॉन्ग. क्यों? बिकॉज आर्टरीज में बेटा बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और प्रेशर को विथस्टैंड करने के लिए आपको ट्यूनिका मीडिया जो मस्कुलर लेयर है वो आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए, अदरवाइज द ब्लड वेसल माइट कोलैप्स. इज दैट राइट? आपने ये नोटिस किया होगा जब आप वेन्स में जब डॉक्टर्स आपको सुई टोचते हैं, है ना, सलाइन लगाने के लिए, तो अगर वो वेन्स थोड़े से भी डिस्प्लेस हो गए उसके बाद वो वेन्स उस जगह पे नहीं आते, मतलब टेक्निकली फॉर अ मोमेंटरी पीरियड ऑफ टाइम द वेन्स कोलैप्स, राइट. वापस आपको वही वेन के अंदर आप इंजेक्ट नहीं कर पाओगे. सो यू हैव टू लुक आउट फॉर अ डिफरेंट वेन ऑल टुगेदर. इसीलिए हम बोलते हैं कि जैसे तुम्हें सलाइन लगाया है तो हाथ को हिलाना नहीं, क्योंकि अगर वेन्स कोलैप्स हो गए वापस उसी वेन पे टारगेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है. ठीक है, we will talk about the differences of arteries and veins, but now what we studied in this particular slide was just the histological differences. Is that very clear? So I told you tunica adventitia is not well developed. Tunica adventitia is not well developed because आर्टरीज जो है बेटा इट इज़ डीपली सिचुएटेड, इनको बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं है फ्रॉम दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. बट अगर आप वेन्स में देखोगे तो वेन्स में ट्यूनिका एडवेंटिशिया इज हाईली डेवलप्ड, थिक लेयर है ना, क्योंकि वेन्स आपके सुपरफिशियली प्रेजेंट है बेटा, डीपली सिचुएटेड नहीं है, दे आर सुपरफिशियली प्रेजेंट, राइट. सो व्हेन दे आर सुपरफिशियली प्रेजेंट तो देर माइट बी अ चांस ऑफ अ लॉट ऑफ डैमेज एसोसिएटेड, राइट. सो इसीलिए नेचर ने कितना ब्यूटीफुली प्लेस किया है, देखो कि बाहर प्रेजेंट है तो डैमेज हो सकता है, पंचर हो सकता है, कोई भी इंजरी हो सकती है, तो इसीलिए ट्यूनिका एडवेंटिशिया को थोड़ा सा थिक कर दिया है. वेरेज अगर आर्टरीज में देखोगे तो ट्यूनिका एडवेंटिशिया इज कंपेरेटिवली थिनर बिकॉज इतनी ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है बेटा. समझे? सेम टाइप का लेयर्स यहाँ पे भी है बेटा, मैं वापस लिख नहीं रहा हूँ, आपको मैंने बताया कि ट्यूनिका एडवेंटिशिया यहाँ पे देख लो कि ये जो आपका दिख रहा है ये ट्यूनिका एडवेंटिशिया है. कंपेरेटिवली यू हैव सीन दैट ट्यूनिका एडवेंटिशिया इज वेल डेवलप्ड. इज दैट राइट? वी विल राइट इट हियर.
it is well developed. I told you the reason why it is well developed. Then you have tunica media बेटा, जो आर्टरीज के कंपैरिजन में ट्यूनिका मीडिया इज थिनर बिकॉज वेन्स में कोई टाइप का प्रेशर नहीं होता. इज दैट राइट? आपके बॉडी के थ्रू वेन्स पास हो रहे हैं, वेन्स दिखते हैं, है ना. तो वेन्स के ऊपर अगर आप हाथ रखते हो तो क्या आपको एक प्रेशर, आपको पल्स फील होता है? कुछ भी फील नहीं होता, राइट. सो वेन्स में प्रेशर इज कंपेरेटिवली जीरो. इज दैट राइट? और एक डिफरेंस अगर आप देखते हो तो ट्यूनिका एडवेंटिशिया और ट्यूनिका मीडिया के बीच में देयर इज नो एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना. वेरएज यहाँ पे देखो कि आपको एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना दिख रहा है ये, वेरएज दो लैमिना दिख रहे हैं. क्यों यहाँ पे इलास्टिसिटी की रिक्वायरमेंट है? बिकॉज प्रेशर से ब्लड फ्लो हो रहा है. यहाँ पे इतनी इलास्टिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है. क्यों? बिकॉज प्रेशर ही नहीं है बेटा. तो क्यों अननेसेसरी? देखो कितना ब्यूटिफुली हिस्टोलॉजिकली नेचर ने बॉडी में ऐसे चीज़ें अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट प्रेजेंट होते हैं. वेरी क्लियरली अंडरस्टूड बेटा. सो देर इज नो एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना एंड देन देर इज अ इंटरनल इलास्टिक लैमिना. हम इसको एक्सटर्नल इंटरनल जस्ट विद कंपेरिजन विद द आर्टरीज वेन्स बोलेंगे, बट टेक्निकली हियर यू कैन ओनली जस्ट से दैट इट इज ओनली you can only say that it is only associated with it is just elastic lamina. external internal बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट हम यहाँ पे internal इसलिए बोलते हैं because we are comparing it with the arteries. ठीक है बेटा? तो it is internal elastic lamina. समझी क्यों? ठीक है. પછી આ બ્લેક કલરનું લેયર क्या है? ब्लैक कलर का लेयर जो है दैट इज एंडोथीलियम. दैट इज एंडोथीलियम. इसी को मैं क्या बोल रहा था? एंडोथीलियम के लेयर को क्या बोलते हैं हम बेटा? ट्यूनिका इंटीमा. मेरी माँ, उसकी माँ, ट्यूनिका इंटीमा. कुछ भी बकवास हो गई है, कुछ भी. और ये जो बीच का जो ल्यूमेन है आप देख रहे हो बेटा कि यहाँ पे वेन्स का ल्यूमेन इज कंपेरेटिवली बिगर दैन द आर्टीरियल ल्यूमेन. क्यों? बिकॉज आर्टीरियल ल्यूमेन में ब्लड जो है प्रेशर से फ्लो हो रहा है. तो जब प्रेशर आएगा, जब पल्स फील हो रहा है तब ल्यूमेन बड़ा हो रहा है, जब पल्स फील नहीं हो रहा तब ल्यूमेन छोटा है. वेरएज यहाँ पे देर इज अ कॉन्स्टेंट ल्यूमेन, देर इज अ थिक ल्यूमेन एसोसिएटेड. ठीक है? बिकॉज यहाँ पे कोई प्रेशर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है बेटा. समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है. सो दिस इज द हिस्टोलॉजिकल डिफरेंसेस. ये हो गया आर्टरीज का डिफरेंसेस. ठीक है. आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद क्या करना है कि ट्यूनिका एक्सटर्ना में क्या है, ट्यूनिका मीडिया में क्या है, और ट्यूनिका इंटीमा में क्या है. ऑल राइट. और बाद में का डिफरेंसेस हम लोग अभी लिस्ट आउट करेंगे इन दी नेक्स्ट स्लाइड. ओके. अब I told you arteries will branch out to form arterioles. arterioles में कुछ differences नहीं होती. arterioles और arteries में difference यही है कि arteries thick होती है, arterioles उससे comparatively छोटे होते हैं. छोटे मतलब in other words arteries अगर नदी है तो arterioles are the tributaries of that river. ठीक है. मेटा arterioles जो है tributary और जो थिन स्ट्रीम ऑफ वाटर होता है उनके बीच का एक लेयर है. ओके. मेटा आर्टरियोल्स आप पढ़ने वाले हो इन एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में, आपको मेटा आर्टरियोल्स आएगा. अब बात करते हैं कैपिलरीज. नाउ कैपिलरीज आर दोज ब्लड वेसल्स विच आर एक्सट्रीमली थिन. दे आर वेरी थिन एंड दे आर एज थिन एज अ हेयर स्ट्रैंड. ठीक है. बाल के एक स्ट्रैंड के जितना थिन हो सकते हैं या फिर उससे भी थिन हो सकते हैं. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि हेयर स्ट्रैंड इज सो थिन एंड हेयर स्ट्रैंड इज सॉलिड, करेक्ट. बट कैपिलरीज आर सो थिन बट दे आर हॉलो. ठीक है. तो कैपिलरीज में नेचर ने सिंगल वॉल दिया है और वो सिंगल वॉल जो है एज यू कैन सी इन दिस इज टाइप ऑफ कैपिलरीज. सो कैपिलरीज आर मेड अप ऑफ single wall of simple squamous
एपिथीलियम, सिंगल वॉल ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम। ठीक है, अब इसी सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम को मैं नाम क्या दूंगा, एंडोथीलियम। तो कॉमन सेंस से बेटा एंडोथीलियम है, सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होगा। ठीक है, सो एज यू कैन सी हियर दिस इज अ कंटिन्यूअस कैपिलरी। कंटिन्यूअस कैपिलरी का मतलब क्या है बेटा, कि कैपिलरी हैज नो पर्टिकुलर ब्रेक। कैपिलरीज ये नॉर्मल कैपिलरीज है विच आर प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द टिश्यूज, बट एट सर्टन टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू कुछ कैपिलरीज मॉडिफाई हो जाते हैं, and those modified capillaries are these fenestrated and sinusoidal capillaries. We'll talk about these also in a while. ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे कि बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एंडोथीलियल है, ट्यूनिका इंटीमा जिसको हमने बोला था, एंड ऑल दैट कैपिलरीज कंपेरेटिवली कंटिन्यूअस। जो भी ब्लड सेल्स है दे आर अटैच टू ईच अदर। ठीक है, दिस इज द ल्यूमेन जहाँ से ब्लड पास होगा। द अदर टाइप ऑफ कैपिलरीज जो आपको दिख रही है दे आर फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। फेनेस्ट्रे का मतलब क्या है, फेनेस्ट्रे का मतलब है होल्स, है ना, हमने पढ़ा था होल्स, फेनेस्ट्रे या अपर्चर्स। सो ऐसे व्हेन यू टॉक अबाउट दीज स्पेशलाइज्ड ब्लड वेसल्स जिनमें ऐसे होल्स होंगे, मतलब सेल्स के अंदर ही ऐसे होल्स होंगे बेटा। ठीक है, अब ये फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज आपको कहाँ पे दिखते हैं, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज आर मेजरली सीन इन दी ग्लोमरुलस ऑफ द किडनी। दे आर सीन इन दी ग्लोमरुलस, क्योंकि ग्लोमरुलस में क्या हो रहा है, किडनी में क्या हो रहा है, आपका ब्लड फिल्टर हो रहा, तो एक फिल्ट्रेशन असेंबली बनानी है आपको, राइट। सो नेचर ने देखो कितना ब्यूटीफुल फिल्टर बनाया है ना, आपके बॉडी में एक नेचुरल फिल्ट्रेशन असेंबली है, एंड दैट फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस थ्रू दीज स्मॉल पोर्स और होल्स, एंड सच होल बेयरिंग कैपिलरीज आर कॉल्ड एज फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। ठीक है, अगर ये होल्स और मोटे मोटे बड़े बड़े हो जाए, ठीक है, अगर ये होल्स और बड़े हो जाए और बड़े होकर बड़ी बड़ी गैप बन जाए, ठीक है, ये इंटरसेलुलर गैप ऐसे बन जाए, तो उस मतलब गैप अगर बन जाए तो उसको मैं बोलूँगा साइनस, है ना। होल्स, फेनेस्ट्रे का मतलब क्या है, होल्स। साइनस का मतलब क्या है, बड़ी ओपनिंग, बड़ी कैविटी। तो थ्रू आउट दैट ब्लड वेसल्स अगर बड़ी कैविटी बन जाएंगे तो उसको मैं बोलूँगा साइनस। ठीक है, और साइनस कंटेनिंग मतलब बड़े बड़े होल्स कंटेनिंग ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज आर कॉल्ड एज साइन्यूसॉइड्स। Such sinusoids are present in the liver, in the hepatic lobule. डाइजेशन में वापस पढ़ने वाले हैं हम ये, in the hepatic lobule। ठीक है बेटा, तो ये एक्स्ट्रा, ये दो चीज़ एक्स्ट्रा है, ये मैंने यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किया है बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी स्टडिंग दिस फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी। आप पढ़ने वाले हो इन excretion and sinusoids आप पढ़ने वाले हो in digestion, so you should not feel as if this is something out of the blue moon we are talking about. All right, so those are the major differences with respect to the capillaries and with respect to arteries and veins. Now let's list out the differences between arteries and veins. ठीक है, आर्टरीज और वेन्स। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ कैरेक्टर्स लिखने वाला हूँ और मैं नहीं लिखने वाला हूँ कि बाकी सब चीज़ें आप घर पे से लिख रहे हो। चलो, पहला कैरेक्टर क्या था, वॉल्स। वॉल्स का डिफरेंसेस देख लेंगे पहले हम। ठीक है, सो द फर्स्ट कैरेक्टर विच वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन दी आर्टरीज एंड वेन्स आर वॉल्स। सो पहला क्या था, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। हाउ वॉज ट्यूनिका एडवेंटिशिया इन दी वेन्स? इट वॉज, वेन्स में कैसा था बेटा, वेन्स में इट वॉज वेल डिवेलप्ड, आर्टरीज में इट वॉज नॉट वेल डिवेलप्ड। ठीक है, इट वॉज पुअरली डिवेलप्ड। इज दैट वेरी क्लियर?
सेकंड पॉइंट, मैं कुछ भी नहीं लिखने वाला हूं इस तरफ, ये खुद से आप लिखोगे, ठीक है। देन दी नेक्स्ट लेयर क्या है, ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया वेन्स में कैसा था, ट्यूनिका मीडिया वेन्स में कंपैरेटिवली थिन था, राइट। सो ट्यूनिका मीडिया वाज थिन, चलो लिख ही लेते हैं अभी क्या। और ट्यूनिका मीडिया इन द आर्टरीज वाज थिक। आई टोल्ड यू द रीजन ऑल्सो। ट्यूनिका एडवेंटिशिया इन द वेन्स वाज वेल डेवलप्ड। Tunica adventitia in the arteries was poorly developed. ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कुछ तो था, ठीक है। आर्टरीज में एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना प्रेजेंट था, सो विल टॉक अबाउट एक्सटर्नल इलास्टिक lamina. External elastic lamina was present in the arteries. It was absent in the veins. समझे बेटा, अरे रे absence. It was absent in the veins. Okay. Next is ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा is poorly developed in the veins and it is well developed in the arteries. It is well developed in the arteries. Okay. उसके बाद वाला जो प्रॉपर्टी था that was lumen. किसका lumen wide है, okay. Lumen of the veins was wide, lumen of the arteries was narrow. okay. उसके बाद वॉल्व्स की बात करेंगे, VALVES। वॉल्व्स किस में है, वॉल्व्स होंगे वेन्स में बेटा। क्यों वेन्स में वॉल्व्स की जरूरत है बेटा, वॉल्व्स विल बी प्रेजेंट इन दी वेन्स and they're absent in the arteries except for pulmonary artery. okay. why do you need walls in the veins, because walls में pressure से blood नहीं जा पा रहा, ठीक है, तो backflow के chances होंगे। all the veins in the walls are semi-lunar type, ठीक है। very important from the exam point of view, walls are present in the veins and absent in the arteries. okay. then positions in the body, ये भी मैंने आपको बताया था। positions in the body की veins are superficially present, इसीलिए वो दिखते हैं आपको superficially present, whereas arteries are deeply present. okay. then you have with respect to blood pressure, arteries में blood pressure is 120/80 mmHg, systolic diastolic। वेन्स में दी ब्लड प्रेशर इज 0 mmHg, कभी प्रेशर एक्सपीरियंस ही नहीं होता बेटा। ओके। 9th, आफ्टर डेथ क्या होगा, आफ्टर मॉर्टम या पोस्ट मॉर्टम, आफ्टर डेथ आर्टरीज खाली हो जाती है बेटा, बिकॉज हार्ट कॉन्स्टेंटली पंप करके ब्लड वेसल दैट इज आर्टरीज में डाल रहा है, ठीक है। तो अगर हार्ट ने पंपिंग रोक दिया
तो आर्टरीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खाली हो जाएंगे. सो आर्टरीज आर एम्प्टी बिकॉज आर्टरीज सप्लाई का काम कर रहे हैं. और जितना टिश्यूज, बिकॉज वंस योर हार्ट इज डेड, द लास्ट सेल टू डाई, राइट, इट अप्रॉक्सीमेटली टेक्स अप 24 आवर्स. ठीक है, तब तक आपकी बाकी ऑर्गन्स के सेल्स पूरे के पूरे मरे नहीं है, राइट. तो सेल्स, टिश्यूज आर रिक्वायरिंग न्यूट्रिशन, टिश्यूज आर रिक्वायरिंग ऑक्सीजन. सो आफ्टर डेथ आर्टरीज आर एम्प्टी वेर एज वेन्स आर नॉट एम्प्टी. ठीक है, सो वेन्स कंटेन्स ब्लड. ओके, so these are the major points which we need to see in with respect to our arteries and veins. Now quickly let me show you a real time view of an artery and a real time view of a vein. Okay, अब जो हम लोग देखेंगे, 1 second, हाँ, this is what I want to show you with respect to the artery. Now here what you can see is the atherosclerotic artery. Atherosclerotic artery का मतलब क्या है? This is a plaque which is made up of cholesterol. इस plaque को बोलेंगे आथेरो, ये पैथोलॉजी में पढ़ने वाले हैं हम, आथेरोस्क्लेरोटिक plaque विच इज़ मेड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन. तो देख रहे हो आप कि ये पूरा जो ल्यूमेन है, दिस इज द ल्यूमेन. दैट ल्यूमेन का साइज जो है इट कंपेरेटिवली डिक्रीजेस, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल प्लाक. तो ऑटोमेटिकली ये जो ब्लड वेसल है इसमें से ब्लड फ्लो होना बिल्कुल ही बंद हो जाएगा. ठीक है, एंड द ब्लड वेसल्स विल कोलैप्स. अगर ऐसी कंडीशन हार्ट के मसल्स में हो गई या हार्ट के ब्लड वेसल्स में हो गई, जो जनरली होते हैं, ठीक है, अगर हार्ट के ब्लड वेसल्स में हो गया, देन इट इज़ अ मैटर ऑफ डैमेज, इट इज़ अ मैटर ऑफ क्या बोलते हैं उसको, इट्स अ मैटर ऑफ डेंजर ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट लीडिंग टू हार्ट अटैक. ओके, नाउ लुक एट दिस वेरी क्लियरली. यू कैन सी, आपको दिख रहा है ट्यूनिका एक्सटर्ना. देखो ये वाला ट्यूनिका एक्सटर्ना दिख रहा है आपको. Tunica externa, as you can see the name given here. ठीक है, ट्यूनिका एक्सटर्ना. अरे छोटे छोटे जो आपको ब्लड वेसल्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे, एक मिनट बेटा, ये जो ब्लड वेसल्स आपको दिख रहा है ना, ये रेड कलर के जो स्पॉट्स दिख रहे हैं, दीज रेड कलर के स्पॉट्स आर कॉल्ड एज वैसोरम. ये स्पेशल टाइप के ब्लड वेसल्स है जिसको बोलेंगे वासा रेफर्स टू वेसल्स, वैसोरम रेफर्स टू ब्लड वेसल्स. तो वेसल्स सप्लाइंग ब्लड टू दी ब्लड वेसल्स. आई एम राइटिंग इट डाउन. So what are vasa vasorum? These are blood vessels supplying blood to the blood vessels. जैसे हार्ट को भी ब्लड वेसल्स की रिक्वायरमेंट है बिकॉज हार्ट में भी मसल्स है, वैसे ही आर्टरीज और वेन्स को भी ब्लड वेसल्स की रिक्वायरमेंट है बिकॉज वहाँ पे भी मसल्स है. तो ब्लड वेसल्स सप्लाइंग ब्लड टू दी ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड एज वैसा वासोरम. समझे बेटा? ठीक है, तो आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ट्यूनिका एक्सटर्ना, दिस इज ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका एडवेंटिशिया. आ जो ब्लू कलरનું લાઈન છે આ શું છે? एक्सटर्नल इलास्टिक लैमिना. वेन भी दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है. ये आपको दिख रहा है ट्यूनिका मीडिया, इधर लिखा हुआ है बेटा, मैं वापस नहीं लिखता. ओके, ये आपको दिख रहा है इंटरनल इलास्टिक लैमिना, इंटरनल इलास्टिक लैमिना. એના શું છે? આ તમારું ટ્યુનિકા ઇન્ટીમા છે, ठीक है. इंटीमा refers to
टेसलेटेड एपिथेलियम। समझे बेटा? तो ये एक प्रोग्रेशन, एक जनरल डायग्राम फॉर एक ब्लड वेसल था, दैट इज योर आर्टरी। लेट अस सी दिस। और तो कुछ भी नहीं है इसमें देखने लायक, ठीक है। थोड़ी सी अंदर की व्यू देखते हैं अपन। आई वॉन्टेड टू शो यू व्हाट टेसलेटेड एपिथेलियम लुक्स लाइक। कि जब भी हम बोलते हैं ना वेवी, तो वेवी का मतलब क्या है वो मेरे को आपको दिखाना था, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके अंदर झांकते हैं। ये आपको दिख रहा है? देखो ल्यूमेन कितना छोटा हो गया। दिख रहा है आपको बेटा कैसा वेवी अपीयरेंस दिख रहा है आपको? कैसा ब्लड वेसल का कैसा वेवी अपीयरेंस है ना, अंदर का, ब्लड वेसल का नहीं, अपने एंडोथीलियम का कैसा वेवी अपीयरेंस है बेटा, ठीक है। वही मेरे को आपको दिखाना था। दैट इज ऑल आई वांटेड टू शो यू, ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम। नाउ लेट्स गो बैक टू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वेन, a transverse section of a vein. If you can see here, now very characteristically you can see thick tunica adventitia. Okay, दिख रहा है आपको बेटा? thick tunica adventitia दिख रहा है। ओके, ल्यूमेन कितना बड़ा दिख रहा है आपको, है ना। फिर इंटीमा कितना बड़ा दिख रहा है, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे ट्यूनिका इंटीमा और ट्यूनिका मीडिया आपको कितना छोटा दिख रहा है, आपको कैरेक्टरिस्टिकली यू कैन सी इट। ओके, now let's go back inside and let's see the veins, valves inside the veins. ये दिख रहा है आपको बेटा? ये देखो, ये राइट वॉल्व है, ये लेफ्ट वॉल्व है, ठीक है, और ये वॉल्व के अंदर का ल्यूमेन है। सो कैरेक्टरिस्टिकली यू विल रिक्वायर वॉल्व्स। दिस इज अ टाइप ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व, बिकॉज वेन्स में चांसेस बहुत है कि क्या बोलते हैं उसको, चांसेस बहुत है कि बैकफ्लो होगा, ठीक है। ऑल दीज ब्लड वेसल्स हियर, ये सब ब्लड वेसल्स जो आपको दिख रहे हैं, व्हाट आर दे आर नथिंग बट योर वाजा वासोरम। वाजा वासोरम, इज दैट वेरी क्लियरली अंडरस्टूड बेटा? ठीक है। सो ऑन दैट लेवल we will have to wind up our class for today. Okay, so this is all for today. We will have to end up our session with respect to the blood vessels at this moment. In the next class we will take up different type of circulatory system, the arterial system, the venous system, the fetal circulation, and then we'll have one particular class for ECG. ठीक है? So till that time, take care of yourself. God bless you. Enjoy your day and keep studying. Thank you so much for watching the video. God bless you. Give my regards to your parents. Bye bye.